Hey friends, welcome back to class 4 of nouns. So in the previous class we have seen what is common noun, what is proper noun, what is singular and plural noun. So today we are going to cover a very important, simple as well as little confusing noun. अब आप सोच रहे होंगे मैडम ने कहा सिंपल भी है और कंफ्यूजिंग भी है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स सिंपल इसलिए है बिकॉज दिस नाउन डील्स विद इमोशंस, विद फीलिंग्स, विद इवेंट्स, विद occurrence. Yes, so that is why it's simple. And complex or confusing because many people, many of the students confuse this noun with other parts of speech. Say for example adjective or verb or other common noun. I think now you have guessed what will be the topic for today's class. Yes my dear friends, you guessed it right. आज के क्लास में हम कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के बारे में सीखने जा रहे हैं. So before starting the class, I would like to introduce myself. My name is Kaurubi Ghosh and by profession I am a trainer in spoken English, soft skills and public speaking skills. And before going to the class, let me ask you, have you subscribed to my channel? If not, please subscribe and like my videos so that I get motivated to make more and more such videos for you. So now, without any further ado, let us move to our class. So friends, nouns can be broadly classified into two major categories. First one is physical or tangible and second one is non-physical or intangible. So what is physical? So physical nouns are called concrete nouns. Anything which can be seen, which can be heard, which can be felt, which can be tasted, which can be heard. These are all concrete nouns. And the opposite, that is, which cannot be seen, heard, felt, touched, tasted, or in other words, which cannot be perceived by our five senses, that is by sight, by smelling, by nose, by tongue, by feeling. So these are called abstract noun. तो हम जिसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, स्मेल नहीं कर सकते हैं, यानी अपने पांचों सेंसेस से जिन्हें हम अनुभव नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जी हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं या फिर इंटैंजिबल नाउन कहते हैं. इंटैंजिबल क्यों? इंटैंजिबल यानी जिसे हम छू नहीं सकते हैं. सो दोज आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फ्रेंड्स, आप लोग जरूर ये सोच रहे होंगे कि हमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखने की क्या ज़रूरत है. तो मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि एडजेक्टिव हो गया, देन वर्ब्स हो गए, देन कुछ कॉमन नाउन्स हो गए, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ फॉर्म होता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से फॉर्म होता है. तो आगे चल के जब हमें एडजेक्टिव फॉर्म करना हो, सो इट विल बी वेरी इजी टू फॉर्म एडजेक्टिव्स यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जो हम कि आगे जाके हम ये क्लास के अंत में हम सीखेंगे कि कैसे इसे यूज करें. तो अंत तक ये वीडियो में बने रहे फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में हम काफी कुछ इम्पोर्टेंट सीखने वाले हैं. फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि हम कैसे समझें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से हैं. तो आपके सुविधा के लिए मैं इसे कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहूंगी. सो फर्स्ट कैटेगरी वुड बी इवेंट. से फॉर एग्जांपल इसे एक उदाहरण के तहत समझते हैं. से फॉर एग्जांपल आप जरूर बर्थडे पार्टी में गए होंगे. सो बर्थडे पार्टी में आपने क्या देखा? जी हाँ, केक्स, बलून्स, decorative items like streamers and snowflakes etc. So these are physical. इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, right? So जिसे हम देख सकते हैं they are called yes concrete nouns. But birthday में आप जाके क्या करते हैं? You celebrate. So celebration,
हंसते हैं, लाफ्टर, यस, फन। सो दीज आर जिसे हम महसूस सिर्फ कर सकते हैं, विच कैन बी फेल्ट बट विच कैन नॉट बी physically seen, heard, smelled. Those are called abstract nouns. Now, second category would be emotions. Human emotions कैसे होते हैं? Joy, right? Anger, jealousy, so enmity. These are called feelings or emotions. So इस तरह के अगर कुछ emotions वाले शब्द आते हैं, so those are called abstract nouns. And third category is idea or concepts. For example, partnership, then freedom, then friendship. These are called abstract noun. तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि abstract noun किसे कहते हैं और आप कैसे समझेंगे कि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या नहीं। सो फ्रेंड्स, आइए आप और मैं हम दोनों मिलके कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं और देखते हैं कि आपने समझा है कि नहीं। सो फर्स्ट एक्सरसाइज और फर्स्ट एग्जांपल वुड बी द गर्ल हैड परमिशन टू गो टू द यूनिवर्सिटी। यस, तो मैं 3 काउंट करूंगी 3 तक, 1 2 3। यस, क्या आपको समझा कि इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है और इसमें से कॉमन नाउन कौन सा है? जी हाँ मेरे दोस्तों, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, ऑल्सो यूनिवर्सिटी इज अ कॉमन नाउन। और इसमें से कॉन्क्रीट नाउन कौन सा होगा? यस, परमिशन, राइट, परमिशन, बिकॉज परमिशन cannot be seen, it cannot be heard. Second is my father is a very patient man, right? तो common noun इसमें क्या होगा? Yes, you guessed it right, father and man. Here please be careful, he is a patient man. So यहाँ patient is not abstract noun, it's an adjective, क्योंकि वो गुण बता रहा है, इंसान का गुण बता रहा है, that is why patient is adjective. लेकिन ये सेम patient को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हाँ ये देखते हैं। सो माई फादर हैज गॉट लॉट्स ऑफ पेशेंस। यहाँ पे पेशेंस जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि पेशेंस एक चीज है जो हम देख नहीं सकते हैं। सो दैट इज वाई पेशेंस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो फ्रेंड्स, आई बिलीव दैट टिल हियर योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर. What are abstract nouns and what are concrete noun? Now let us see how abstract nouns are formed. So abstract nouns can be formed first from adjective. For example, तो मुझे यकीन है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने आज के वीडियो से जरूर कुछ सीखा होगा. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग.